पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कांग्रेस ਅਤੇ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ लपेटे विच लैंदे होए तिखे निशाने विन्ने हैं। मजीठिया ने कहा कि सिद्धू ਨੂੰ पार्टी अंदर किसी तरह का फैसला लैण की इजाजत नहीं है, जिस कारण वह बुखलाया होया अजिहे बयान दे रहा है। ਉਹ ਭਰਾਵਾ मैं तो लंबी उम्र की अरदास करदा मगर जे इस तरह देखो 60 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਂਭ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਡਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਬਣਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਕਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ISI ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ISI ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਪਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਰਾਤ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ। हर वारी तुसीं मूर्ख नहीं बना सकते लोगों को चोणां तो 6 महीने पहला। सियासत दे विच कदों की हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं ला सकता। इत्थे कट्टर दुश्मन सज्जण बन जाते हैं अते मित्रां विच इत्थे खड़क भी जाती है। यह कुछ अजकल लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस कर रहे हैं। हर वेले भगवंत मान ते हमलावर रहन वाले बैंस अज भगवंत मान दीयां सिफतां दे पुल बन रहे हैं। क्यों अते किवें ओह तुसीं आप ही वेख लो। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੋਰ MP ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਪੀੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। MP ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। उधर अपनी ही सरकार विच उठे बगावती सुरां तो बाद हुण विरोधी धिर आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन की कुर्सी नूं हत्थ पा लिया है। विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा की अगवाई विच आप दे वफद ने पंजाब के राजपाल VP सिंह बदनौर नाल मुलाकात की। उन्हां पंजाब के राजपाल नूं मंग पत्र दिता ते कहा कि कैप्टन सरकार लोकां विधायकां ते अपनी कैबिनेट का समर्थन गवा चुकी है, इसलिए विशेष सैशन बुला के सरकार का फ्लोर टेस्ट किया जावे। देखिए, मानयोग राज्यपाल साहब को हमारा आम आदमी पार्टी का वफद जो है मिल के आया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो उसकी संख्या कम हो गई है। वो अब मैं समझता माइनॉरिटी की सरकार है, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। सो आम आदमी पार्टी ने मांग की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है पंजाब विधानसभा। हमने उनको गवर्नर साहब से पूछा है कि तुरंत, उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुरंत पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए
उस सेशन में फ्लोर पे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी मेजॉरिटी जो है शो करें, तभी उनको आगे सरकार चलाने का हक है, नहीं वरना उनको इस्तीफा देना चाहिए। यह हमारी मांग थी और गवर्नर साहब ने हमें भरोसा दिया है कि बिल्कुल हम सरकार को लिखेंगे तुरंत जो है सेशन बुलाए। काफी सवाल, पंजाब कैबिनेट ने भी एक फैसला किया है कि स्पेशल सेशन बुलाया है एक दिन का। देखिए, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है, जो हमारे गुरु साहिबान को समर्पित है। उसमें कोई भी और चर्चा नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो योगदान है, जो ह्यूमैनिटी को उनका योगदान दिया है, उस पर हम विचार करेंगे, उनके लिए हम श्रद्धा अपनी प्रकट करेंगे। पर लेकिन पंजाब के बहुत सारे मामले हैं। आज पंजाब के लोग घर घर रोजगार की मांग कर रहे हैं कैप्टन साहब से। आज पंजाब के लोग, किसान जो है पंजाब का, वो कर्जा माफी की उड़ीक कर रहा है। आज पंजाब का दलित अपनी जो है उनकी मांगे को लेकर पंजाब में धरनों पे है। आज पंजाब का मुलाजम, पंजाब का एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। आज पंजाब का हर एक वर्ग जो है वो धरनों पे उतरा है और उसको लेके मैं समझता हूँ चर्चा की जरूरत है। इसलिए विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है, जो मानसून का सेशन जो ड्यू है, उस सेशन को 15 दिन का बुलाना चाहिए। 15 डेज का वो सेशन हो। वो सेशन जो है वो आपके कैमरों पे, मीडिया के कैमरों पे वो लाइव होना चाहिए। ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 285 ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ 295 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ कैंसल करांगे। मैं माफी मंगदा गुरदास मान जी तो, माफी चाहना मान साहब जो कैंसल हो गए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ नहीं है। देखिए, तालिबानी सोच के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, जो कश्मीर को कहे कि भारत का अंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में आकर के अपना झंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो। आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए। आपको पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, आपको आतंकवादियों की बोली नहीं बोलनी चाहिए। आप देश भगत की बात करो, देश की बात करो। इंदिरा गांधी के बारे में भी
उनके मैगजीन में छपा हुआ था। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की जो सोच है, उस सोच जो है वो देश की विचारधारा के खिलाफ सोच है। देखिए, तालिबानी सोच के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, जो कश्मीर को कहे कि भारत का अंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में आकर के अपना झंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो। आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए। आपको पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए। आपको आतंकवादियों की बोली नहीं बोलनी चाहिए। आप देशभक्त की बात करो, देश की बात करो। इंदिरा गांधी के बारे में भी उनके मैगजीन में छपा हुआ था। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की जो सोच है, उस सोच जो है वो देश की विचारधारा के खिलाफ सोच है। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SKM ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ 25 सितंबर ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। और जैसा कि आपने सुना होगा, हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज़ करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज़्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। इसके अलावा हमने तय किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है। उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष को तेज़ करने की घोषणा वहाँ से होगी और हर ज़िले में, हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहाँ से फैलेगा। उसमें भाग लेने की भी हमने अपील की है। हमने ये भी अपील की है कि जिलों के और निचले स्तर पर सभी लड़ाकू संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन ये बैठें और इन कानूनों का अध्ययन करें, इसके प्रभाव का अध्ययन करें और एक संयुक्त संघर्ष का निर्माण देश भर में करें। हमने 3 कानूनों की, खेती के कॉर्पोरेट पक्षधर कानूनों को वापस कराने की मांग उठाई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग उठाई है। हमने नए बिजली बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। और जो NCR में प्रदूषण के सवाल पर इन्होंने नया कानून बनाया है, उसमें किसानों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। यही हमारी प्रमुख मांगें हैं। इस सम्मेलन के में चर्चा के दौरान हमने समझा कि सरकार का जो ये हमला है, जो कारपोरेट के पक्ष से, विदेशी कंपनियों के पक्ष से खेती पर हमला है, ये हमला तो पूरी खेती के प्रारूप, कौन सी फसलें पैदा की जाएंगी, किस तरह के लागत के दाम महंगे रेट पर बेचे जाएंगे, किस तरह से मार्केट पर कब्जा करके फसलें जो है किसानों की सस्ते में खरीदी जाएंगी, ठेके में बांधकर उनसे खेती कराई जाएगी,